Good afternoon, everyone. आवाज आ रही है? तुम लोग का लंच वंच हो गया या अभी चल रहा है? बन रहा है मैम। बन रहा है। ठीक है, जब तक बनेगा तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। यस मैम। मैंने तुम लोग को गूगल क्लासरूम में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक वीडियो भेजा था, किसी ने देखा है? एज ऑलवेज किसी ने नहीं देखा होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम है, बेसिकली अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया था current transformer, same in case of potential transformer also. These transformers are used for measuring the potential across the line. ठीक है, so suppose this is a three-phase circuit. So these transformers are connected between these lines like this. So basically this is your PT. So you will step down the voltage, and this is the meter which is connected in the secondary side of the CT. This is the primary side of the CT and this is the secondary side of the CT. ठीक है, so there will be again some rating of the CT जिसमें हमको number of turns of CT दिया रहेगा, which is equal to always VP by VS or NP by NS, right? So number of primary turns divided by number of secondary turns will give you the voltage ratio of the CT. यहाँ पर भी जैसे कि हमने करंट ट्रांसफार्मर में हमने जैसे रेशियो एरर और फेज एंगल एरर निकाला था इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर. Similarly, in case of PT also we will calculate the ratio error and phase angle error. So this is suppose a three-phase system. इस three-phase system में our PT is connected like this, and you can measure the line voltage by stepping down the line voltage and keeping a meter in the secondary side of the PT. You can measure the voltage which is present in between of this line. So suppose this is an RYB system. अगर ये RYB system है तो YB के बीच का जो line voltage है that can be measured with this PT. और ये voltage you can step down this voltage up to 200 volts, up to 250 volts, 100 volts के आसपास इसको step down करके measure कर सकते हैं. So basically you will not need a higher measuring instrument, और हम जो laboratory based measuring instrument है उसी को use करके directly voltage measure कर सकते हैं. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? किसी को नहीं बहुत ब्रेक हो रहा है मैम आपका. कट के आ रहा है मैम. यस मैम. अच्छा, एक मिनट. एक्चुअली शायद बारिश वारिश की वजह से नेटवर्क का थोड़ा इशू है. लेट मी चेक द कनेक्शन. ओके, सो अभी क्लियर है क्या आवाज? इज इट ओके नाउ? यस मैम. ओके, ठीक है. अगर आवाज़ नहीं आएगी तो बता देना. सो बेकार में बोलते रहूँगी मैं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग.
So this is how your potential transformer is connected. So जैसे कि हमने CT में लाइन करंट मेजर किया था, यहाँ पर हम लाइन वोल्टेज मेजर करें. सो वी आर मेजरिंग वी वाई बी हियर. इसको अगर हम आर वाई के बीच में कनेक्ट करते हैं तो वी कैन मेजर आर वाई लाइन वोल्टेज और आर बी लाइन वोल्टेज. सो एनी लाइन वोल्टेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस पी टी. और जैसे कि सी टी के सेकेंडरी साइड में मैंने बोला था कि सेकेंडरी साइड इज कनेक्टेड विद अ मीटर. So it can be similarly here in case of PT, this can be a voltmeter. This can be a voltmeter. Potential coil of a wattmeter. या एक्साइटेशन कॉयल ऑफ अ ओवर वोल्टेज रिले. तो कोई भी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दिस सेकेंडरी साइड में हम कुछ भी लगा सकते हैं. या तो एक्साइटेशन कॉयल ऑफ रिले लगा सकते हैं, या वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, या पोटेंशियल कॉयल ऑफ वॉट मीटर लगा सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं, द सेकेंडरी साइड ऑफ पी टी कैन बी कनेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एज बर्डन ऑफ पी टी. जैसे बर्डन ऑफ सी टी था वैसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्डन. ठीक है. Now if we draw the equivalent diagram of potential transformer, so equivalent diagram of any transformer is same. तो जैसे current transformer में था वैसे ही potential transformer में भी है. So this is your equivalent circuit diagram. VP REXM, this is EP, RP and XP. This is the primary side. Secondary side में induced EMF ES, RS, XP, XS, and you have your load. ठीक है, जो भी मीटर का लोड है that will be your load. So this will be VS, this is IS. So this is IP which is flowing from here and IS which is flowing from here. So this is the equivalent circuit diagram of PT. ठीक है. यहाँ पर भी वी हैव फ्यू एंगल्स. जैसे कि हमने सीटी में डेल, डेल्टा, बीटा, थीटा ऐसे एंगल्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पर पीटी में भी वी हैव फ्यू एंगल्स. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन VS secondary side reversed voltage VS and VP. याद होगा तुम लोग को इन लास्ट टॉपिक करंट ट्रांसफार्मर में थीटा वाज एंगल बिटवीन NIS एंड IP. वैसे ही यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन VS एंड VP. सो थीटा जो हम फेज एंगल एरर निकाले थे इन केस ऑफ CT, यहाँ पर हम फेज एंगल एरर निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ PT. और PT के बीच में जो फेज एंगल एरर होगा वो NVS और VP के बीच में होगा. सेकेंडरी साइड रिवर्स वोल्टेज विल गिव यू NVS, राइट. सो बिकॉज N is equal to VP by VS, so secondary side reverse voltage can be written as NVS. So मैम theta रिवर्स is वोल्टेज मतलब मैम सेकेंडरी reverse. साइड का जो प्राइमरी साइड में लाएंगे रिफ्लेक्शन हाँ हुई है ना. हाँ हाँ हाँ, उसी को सेकेंडरी साइड रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं.
So you can write this Vs as NVS. So this is theta is the angle between NVS and VP. Beta is the angle between IP and EP. Angle between primary current and induced EMF in the primary side is called as beta, and del is the angle between Vs, again NVS. Del is the angle between NVS and IS. या del is the angle between Vs and Is लिख लो. So NVS और Is by N के का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा. So del is the angle between Vs and Is, beta is the angle between IP and EP, and theta is the angle between reverse voltage Vs and Vp. So now if you draw the phasor diagram of potential transformer, तो phasor diagram of potential transformer कैसा होगा? इसीलिए मैंने तुम लोगों को कल एक वीडियो भेजा था. किसी ने वो वीडियो देखा? Anyone of you? मैम एक फोन में ऑन हो जाए मैम क्लास में सबको. क्या क्या? एक क्लास बार में है ना मैम, इको कर रहा है आवाज आपका फोन से. क्लास इको कर रहा है? हाँ, आवाज गूंज रहा है आपका मैम यहाँ क्लास. सभी को इको कर रहा है या किसी एक को इको कर रहा है? क्लास में 3 ही बच्चे हैं मैम, हम लोग एक फोन में हो जाए हम लोग. हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा कंसर्न है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अटेंडेंस आप लोग नहीं है. अटेंडेंस का मेरे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम लोग पढ़ने ठीक है के लिए आओ, अटेंडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ठीक है. ओके. सो तुम लोग कौन कौन 3 एक साथ पढ़ रहे हो मुझे बता देना, मैं मार्क कर लूँगी. मैम हम है और जेरी है, हम दोनों साथ में. कौन होता है? एमडी इश्तियाक इश्तियाक अहमद जी, और जेरी जेएस टोपो, ओके. और एक है उस साइड में चल गया अपना, बोल रहा है उधर हम कर लेंगे. अच्छा. ओके. Okay, so let us see the phasor diagram of potential transformer. So phasor diagram में again first vector which is taken is as your flux. Flux से 90 degree will be your कौन सा vector होगा? Flux से 90 मैम degree will EP be और your IW IE, IE सॉरी. और IE और IM का जो resultant होगा this will be your I naught. ठीक है. I और IM का resultant will be your I naught, and this is your IM. ये है हमारा IE और ये है I naught. ठीक है. So this is your current. Now I naught बना लिया. Let us draw IS. So IS will be, suppose this is your ES and फ्लक्स से 90 डिग्री पे हमारा EP और ES है, तो EP ये हो गया, ES ये हो गया. Now IS will be lagging ES. If we have a lagging Yes load, मैम. IS will be Yes मैम. lagging ये से ES. लैग करेगा. Yes So मैम. suppose इसको थोड़ा सा अलग एंगल पे बनाते हैं. So this is your IS. So this is your IS. Now VS कैसे बनाएंगे? How will you draw VS? मैम केवीएल इक्वेशन पहले लिख लेंगे मैम सेकेंडरी साइड का फेजर फॉर्म में. उसके हाँ, बाद उसके ऊपर इक्वेशन लिखने की जरूरत वैसे नहीं है तुमको, बट मैम VS और इन दोनों का सम यानी VS यस मैम. plus ISXS plus ISRS will give you ES. यस मैम 90 डिग्री मैम उससे
ठीक है। और VS और IS में भी हमारा डिफरेंस होगा, देयर IS विल बी लैगिंग VS, राइट? यस मैम। IS will be lagging VS, yes or no? Because we have RS excess drop और excess हमारा इंडक्टर है, तो IS जो है वो VS से कुछ एंगल से लैग करेगा और वो कुछ एंगल यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है विच इज डेल. So del is the angle between VS and IS. So you can, तुमने IS ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम VS यहाँ बना सकते हैं डेल एंगल पे, ठीक है? Any problem in this? If IS is this, IS will lag VS with angle of del. So VS can be drawn at an angle from IS here. Now IS मैम नहीं समझ में आया मैम VS। अरे VS IS को लीड करेगा कि नहीं डेल एंगल से, या IS VS को लैग करेगा? VS कौन सा वोल्टेज है? VS इज दिस वोल्टेज ना, लोड का यस मैम। हाँ ये वोल्टेज है। तो ES में से ये ड्रॉप माइनस करो या VS में ये ड्रॉप प्लस कर दो, तो तुमको दोनों ही तरीके से ES मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर तुम, क्योंकि ये रिएक्टिव इम्पिडेंस है, मतलब तुम्हारे सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है, रिएक्टिव इम्पिडेंस है, तो Yes, ma'am. IS जो है वो VS से कुछ एंगल से लैग करेगा, करंट जो है वो लैग करेगा VS से, यस मैम। ठीक है? तो और वो कुछ मैम तो एंगल हम, मैम VS को मैम लिखेंगे तो मैम ES फेजर माइनस RS प्लस JXS इंटू IS ना। हाँ तो अभी फिलहाल हम वही करने जा रहे हैं, हम VS में IS RS ऐड करेंगे, IS RS प्लस IS JXS ऐड करेंगे एंड यू विल गेट ES, ठीक है? यस मैम ठीक है मैम ठीक है मैम। Okay, so we have drawn first IS which will be lagging ES by some angle, और IS जो है वो VS से भी some angle से lag करेगा because the secondary winding is having some reactance in it जो कि XS से डिनोट किया है। अब VS बना लिया तो VS में IS, ये VS है, VS में IS RS IS के डायरेक्शन में ऐड किया, उसके बाद 90 डिग्री एंगल पे IS एक्सेस ऐड किया, इन तीनों का सम VS प्लस IS RS प्लस IS JXS विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ES, ठीक है? तो यही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ES इज इक्वल टू VS प्लस IS RS प्लस IS JXS. So this will give you total secondary side of your potential transformer. Now going back to the primary side. Primary side में क्या है? उल्टा है, ठीक है? This is VP and this is EP. तो EP में इसका ड्रॉप जब ऐड होगा तो हमको VP मिलेगा, yes or no? यस मैम। EP का जो ये वोल्टेज है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा है तो ये भी EP ही है, you can write EP here also. So EP plus IPRP plus IPJXP will give you VP. तो पहले तो IP बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने I0 बनाया है, IS बनाया है, तो IS प्राइमरी साइड में जब लेके जाएंगे IS का वेक्टर तो वो क्या हो जाएगा? NIS NIS होगा या IS by N होगा? मैम IS बाई N सॉरी। ठीक है, सो दिस विल बी IS by N. अब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा IP. दिस इज आवर IP, ठीक है? अब EP में IP के डायरेक्शन में एक वेक्टर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा IPRP, और इससे 90 डिग्री पे एक वेक्टर लेंगे, वो हो जाएगा IPXP, और इन तीनों का जो सम होगा दैट विल बी योर VP.
एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो मैम। ठीक है, यहाँ पर भी दिस इज अल्फा, जैसे करंट ट्रांसफार्मर में ये एंगल अल्फा लिया था, तो दिस इज अल्फा. सो आई एम विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस अल्फा एंड आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके. नाउ सी, जैसे कि हमने करंट ट्रांसफार्मर में इस पूरे वेक्टर को सॉल्व किया था एक ट्रायंगल बना करके, याद होगा तुम लोग को, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया था. अभी यहाँ पर भी हमको वही करना है. वी एक्चुअली वांट अ रिलेशनशिप, क्योंकि हमको क्या करना है, रेशियो एरर निकालना है. तो रेशियो एरर निकालने के लिए हम ये वीपी जो है, इस वीपी का रिलेशनशिप वीएस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं. सो वी विल अगेन ट्रांसफॉर्म दिस फेजर डायग्राम इनटू सेकेंड फेजर डायग्राम, जहाँ पर हम वीपी का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ वीएस, आईएसआरएस, आईएसएक्सएस, इन सब के टर्म्स में हम वीपी का रिलेशनशिप निकालेंगे, जैसे हमने करंट ट्रांसफार्मर में किया था. ठीक है. नाउ दिस पार्ट ऑफ द स्टडी इज नॉट वेरी इजी, जिसके लिए मैंने तुमको एक वीडियो भेजा था. तो अगर तुम वीडियो देख के आए हो देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और अगर नहीं देख के आए हो तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है. ठीक है, बिकॉज वी विल हैव अ लॉट ऑफ components of vector जिसको हम रिजॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर अगेन वी आर टेकिंग एज 5. पहला वेक्टर अगेन वी आर टेकिंग एज 5. जो हमने वहां पर बनाया था सेम वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी बना देंगे. पहले फर्स्ट वेक्टर 5 लिया, यहाँ से आई नॉट लिया, ये है हमारा आई. तो आई एम, इसको थोड़ा आई को और नीचे कर देते हैं. So this is our I, और ये हो गया आई एम और आई का रिजल्टेंट वेक्टर आई नॉट, जो जैसे जैसे अभी हमने बनाया था वैसे वैसे दोबारा बना लेंगे. हम रीड्रॉ कर रहे हैं सेम फेजर डायग्राम को. दिस इज योर आई एस बाई एन. इन दोनों वेक्टर का सम इज योर आई पी. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो सेकेंडरी साइड में वी एस था वो हम प्राइमरी साइड में लेकर के आएंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी साइड में यहाँ पर जो वी एस था, ये वी एस को जब हम प्राइमरी साइड में इसका वेक्टर अपोजिट करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, और आई एस एन और वी एस के बीच में, एन वी एस के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा होगा डेल. ठीक है, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पर एक वेक्टर आएगा विच इज योर एन वी एस. ठीक है, अब इस एन वी एस में ई पी और ई एस जो है वो दोनों वेक्टर इसी वाई एक्सिस पे होगा. सो यहाँ पर ही हमको इसका रिजल्टेंट ई एस बनाना होगा, एन वी एस का रिजल्टेंट ई एस बनाना होगा. ठीक है, सो एन वी एस में पहले तो हम आई एस एन के डायरेक्शन में आई एस बाई एन आर एस ड्रॉप बनाएंगे. ओके सॉरी, आई एस बाई एन आर एस नहीं होगा, क्योंकि हम आर एस को भी प्राइमरी साइड में लेके आ रहे हैं. तो ये एन स्क्वायर आर एस हो जाएगा यस मैम, एन स्क्वायर. फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये एन स्क्वायर आर एस हो जाएगा, और यहाँ पर एक एन था, यहाँ पर एक एन स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके आई एस आर एस एन हो जाएगा. ठीक है, लिख दो.
इज इट क्लियर या नहीं? फ्रॉम So clear. ट्रांसफॉर्मर जब तुम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में लेके आते हो तो ये एन स्क्वायर आर एस हो जाता है, तो वहीं से ये एन स्क्वायर आर एस हो जाएगा और यहाँ पर आई एस बाई एन है तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट फाइनल वेक्टर एज आई एस आर एस एन. आई एस आर एस एन. ठीक है. नाउ इसका 90 डिग्री एक वेक्टर होगा जो कि तुमको ई एस के साथ जोड़ देगा. सो दिस इज योर ई एस and this is your vector is axis n. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नाउ टेल मी दिस एंगल विल बी डेल्टा, है ना? दिस एंगल विल बी डेल्टा एंड दिस एंगल इज योर बीटा. आईपी और ईपी के बीच का जो एंगल है दैट इज योर बीटा. ठीक है, और अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा. अगर ये बीटा है आईपी और वर्टिकल जो Yes, एक्सिस वाई alternation. एक्सिस है ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा. ये वर्टिकल एक्सिस बनाए मैंने और इस ये एंगल जो होगा वो बीटा होगा. Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज योर बीटा. और थीटा कहाँ से कहाँ तक बनाऊं? थीटा इज एंगल बिटवीन सेकेंडरी रिवर्स वोल्टेज एंड वीपी. ओके, सो वीपी हमने अभी बनाया नहीं तो थीटा नहीं बना सकते, तो पहले हम वीपी बनाएंगे. तो वीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ईपी या ईएस में ईपी इज इक्वल टू ईएस. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के लिए ईपी इज इक्वल टू ईएस. सो ईपी में हम आईएस ड्रॉप ऐड करेंगे और एक्सेस ड्रॉप ऐड करेंगे तो वीपी बन जाएगा. ये जो ईपी है या ईएस है इसमें ये ईपी जो है इसमें हम ये ड्रॉप ऐड करेंगे तो हमारा वीपी बन जाएगा. राइट, ईपी में आईएस आरपी आईपी आरपी प्लस आईपी एक्सपी ऐड करेंगे तो वीपी बन जाएगा. तो अभी हमारे पास ऑलरेडी ईपी है. ठीक है, अब इस ईपी में हम आईपी आरपी ऐड करेंगे और आईपी एक्सपी ऐड करेंगे. ठीक है, सो आईपी आरपी विल बी दिस. आईपी से पैरेलल बनाना है एक वेक्टर. आईपी ये है, इस आईपी से पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे आईपी आरपी और यहाँ से एक वेक्टर बनाएंगे आईपी एक्सपी. You will get the vector VP here. You will get the vector VP here. ठीक है, now VP और NVS के बीच का जो एंगल था that is your theta. VP और NVS के बीच का जो एंगल था that is your theta. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, now see we are drawing a 90 degree from here to here. इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं on this. So this is your 90 degree. Suppose this is A, this is O. ये origin जो है वो O है, A है and this is your B. So now we will consider triangle OAB. ठीक है, now from triangle OAB, VP cos theta will be equal to OA. Yes, ma'am.
VP cos theta will be equal to OA. Yes or no? देखो ये थीटा है, यस मैम। यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, ये 90 डिग्री है, सो VP cos थीटा इसको यहाँ लेके आएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू OA. If theta is very small, VP cos theta can be written as VP. Can be assumed as VP. If theta is very small, VP cos यस theta मैम। can be written as VP. Now the main target is to find VP इस वाले वेक्टर को ऐड करके. Now if you see this full vector OA, सिर्फ OA को देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है. तो ये वेक्टर जो OA है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेक्टर्स हियर. ठीक है, एक तो इसमें पहला वेक्टर तुमको NVS साफ साफ दिख रहा है, ठीक है. एक वेक्टर NVS जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है. नाउ यू विल हैव टू add all these vector components to get the final value of OA. ठीक है. Now this is your target. ठीक है. और इसको करने के लिए हमको इन सारे वेक्टर्स का बेसिकली हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा कि ये हम O से A तक कैसे पहुंचेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट VP इज इक्वल टू NVS जो कि ऑलरेडी दिख रहा है. VP is equal to NVS, right? Now second vector is this vector. ये वेक्टर हमारा सेकेंड वेक्टर है, ठीक है. दिस इज IS RS N जो कि IS के डायरेक्शन में है. ये 90 डिग्री है, तो ये डेल्टा होगा. यस और नो? देखो डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल है? IS बाई N और NVS के बीच का एंगल है डेल्टा. NVS तो यहाँ पर सेम वेक्टर है जो कि ऊपर जा रहा है. सो NVS और IS RS N जो कि IS बाई N के डायरेक्शन में ही बनेगा ये ड्रॉप. तो ये एंगल डेल्टा होगा या नहीं? यस मैम। ठीक है. अगर ये एंगल डेल्टा है, ये 90 डिग्री है, सो वी कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर एज टू वेक्टर्स लाइक दिस. एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट. कैन वी राइट दिस कंपोनेंट एज IS RS N cos डेल्टा. ये वाला जो वेक्टर है IS RS N cos डेल्टा लिख सकते हैं इसको. जो OA का लाइन में है जो OA के लाइन में है, जो वेक्टर मैंने सपोज इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं. ये वेक्टर, ठीक है. हमने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. ये एंगल जो है ये डेल्टा है एंड दिस वेक्टर इज, ये जो वेक्टर है OA के लाइन में, ये एंगल जो है डेल्टा है. सो दिस वेक्टर ग्रीन वेक्टर विल बी इक्वल टू IS RS N into cos डेल्टा. RS N into cos डेल्टा. cos डेल्टा. यस मैम। ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक और टर्म निकाल लिया NVS के साथ, विच इज NIS RS cos ऑफ डेल्टा. नाउ सी हियर, यहाँ पर दूसरा जो वेक्टर है हमारा, दिस इज, इस वेक्टर में अब हम यहाँ पर बिकॉज इट इज बहुत छोटा जगह है ना, तो इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है. सो हियर ये वाला जो एंगल होगा, मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ. ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा है. तो ये जो एंगल ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एंगल 90 माइनस डेल्टा होगा. यस मैम। ये भी एंगल 90 माइनस डेल्टा होगा. यस मैम। ठीक है. तो अगर ये 90 माइनस डेल्टा है, तो यहाँ से जो हम वेक्टर को दो वेक्टर बनाते हैं,
again दो रिजल्टेंट वेक्टर, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 है, ये दो वेक्टर ऐसा बना है, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये पूरा एंगल 90 है, ये ब्लू वाला एंगल 90 माइनस डेल्टा है, तो ये छोटा सा एंगल जो है वो डेल्टा होगा। यहाँ पर ये जो छोटा सा एंगल है ये डेल्टा होगा। इस पॉइंट से हमने दो वेक्टर बनाए, एक OA के डायरेक्शन में और एक इससे 90 डिग्री में, जो कि इधर दिख रहा है, ठीक है। एक OA के डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया और एक इससे 90 डिग्री में यहाँ बनाया। नाउ दिस ब्लू एंगल इज 90 माइनस डेल्टा। तुमको इस ट्राइंगल से पता चल गया कि दिस इज 90 माइनस डेल्टा। ये जो दोनों वेक्टर हैं ये 90 डिग्री पे बनाए गए हैं। तो ये जो छोटा सा वेक्टर इधर है, दिस वेक्टर विल बी डेल्टा। यस मैम। एंगल है ये जो छोटा सा, दिस एंगल विल बी डेल्टा, ठीक है। नाउ दिस रेड वेक्टर इज IS एक्सेस n। ये जो रेड वेक्टर है ये IS एक्सेस n है, बड़ा वाला रेड वेक्टर। नाउ IS एक्सेस n को जब तुम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये IS एक्सेस n जब इस तरफ आएगा तो IS एक्सेस n क्या बनेगा, कॉस डेल्टा बनेगा। OA का डायरेक्शन में मैम साइन हो जाएगा मैम, साइन में। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ कॉस होगा, इस तरफ OA के डायरेक्शन में साइन हो जाएगा, राइट। यस मैम। So again you are getting another vector which is adding to OA, which is equal to n IS एक्सेस sin delta, ठीक है। Now we have two more terms to solve, which is यहाँ पर और दो टर्म है जो कि ऐड होंगे। नाउ कमिंग टू हियर, यहाँ पर वापस से हम दो वेक्टर बना सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। मतलब ये OA के डायरेक्शन में हम ये वेक्टर बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं, नहीं सीधा नहीं कर लेते हैं, इसको OA से पैरेलल बनाओ, ठीक है। यहाँ पर OA से पैरेलल एक वेक्टर आएगा एंड दिस वेक्टर विल बी एडिंग इनटू OA। तो अभी बताओ कि ये वेक्टर के लिए सबसे पहले तो हमको एंगल चाहिए। एंगल विल बी EP IP के बीच में जो एंगल है वो कितना है, बीटा है। यस और नो। EP और IP के बीच में ये जो वेक्टर है ना, ये यहाँ पर इस पॉइंट से हमने दो कंपोनेंट्स बनाए 90 डिग्री में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है दैट विल ऐड टू OA और हमको VP वाले इक्वेशन में ऐड होगा ये वाला जो वेक्टर है। नाउ इस वेक्टर को निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए हम ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, दिस फुल कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू बीटा। और ये बीटा कैसे हो रहा है, ये EP है और IP और ये का IP है, तो ये IP और EP के बीच का एंगल जो है ये बीटा होगा। नाउ बिकॉज दिस एंगल, ये जो छोटा एंगल है, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम इसको, इस कंप्लीट एंगल को बीटा लिखते हैं। यहाँ पे एक और एंगल ऐड नहीं करने के रीजन की वजह से this angle is taken as beta, this complete angle is taken as beta. So this vector in this direction will be equal to IP RP cos beta. ये वाला जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे, जिस ये जो ब्लैक डायरेक्शन OA का डायरेक्शन है, ये पूरा एंगल बीटा है, ठीक है। सो ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा एंगल होगा जो कि हम बीटा से माइनस करेंगे इसको निकालने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी आर कंसिडरिंग दिस फुल एंगल एज बीटा। तो अगर ये एंगल बीटा है तो IP RP का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे IP RP cos बीटा होगा। स्मॉल एंगल मैम, इसको निग्लेक्ट स्मॉल एंगल कहाँ से है? ये टोटल एंगल बीटा था ना, ये स्मॉल को मिला करके बीटा था। तो अब इसमें से बीटा में से हमको कुछ एंगल, जो भी मान लो कुछ
थीटा या डेल्टा माइनस करना पड़ेगा ये एंगल निकालने के लिए, जो एरो बनाया हुआ एंगल का, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यस डूइंग मैम। दैट वी कंसीडर दिस एंगल एज बीटा, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, तो क्योंकि कॉस ऑफ बीटा है तो अगर बीटा की वैल्यू छोटी है माइनस करने पे तो यू कैन डायरेक्टली टेक इट एज बीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ओ ए के डायरेक्शन में, दिस कैन बी रिटन एज आई पी आर पी कॉस बीटा, यस मैम। ठीक है। नाउ दिस इज रिटन एज आई पी आर पी कॉस बीटा। और एक टर्म जो लास्ट टर्म है दैट इज आई पी एक्स पी साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ कि ये लास्ट वाला कैसे निकालेंगे। ये तुम्हारा आई ऊपर। पी है, मैंने सारा बता ही दिया तुम लोग को, बस ये लास्ट टर्म बचा हुआ है। यहाँ पर अगर यस हम मैम, दो यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाते हैं, दिस कंपोनेंट विल बी रिजल्टिंग इनटू दिस वेक्टर हियर, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट विल बी रिजल्टिंग इनटू दिस वेक्टर हियर। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, will this be equal to beta or not? मैम ऊपर में जो बनाया है नहीं दिख रहा मेरे को। ये वाला एंगल दिख नहीं रहा है, दूसरे दूसरे कलर से बनाते हैं। ये वाला जो एंगल है, ग्रीन कलर से बनाया ये एंगल, दिस विल बी योर बीटा। ये बीटा कैसे होगा कौन बताएगा। दिस फुल एंगल इज 90 डिग्री, ये जो ऊपर का वेक्टर है दिस वेक्टर एंड ये नीचे का वेक्टर, ये फुल एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस विल बी योर बीटा, दिस इज योर आई पी करस्पॉन्डिंग एंगल मैम। आई पी एक्स पी। हाँ, ये तुम्हारा आई पी एक्स पी का वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है ये आई पी एक्स पी का वेक्टर है विच इज 90 डिग्री टू आई पी, ठीक है। आई पी के डायरेक्शन में 90 डिग्री है। सो दिस एंगल विल बी बीटा, और इसका जो वर्टिकली ये वाला जो ग्रीन वेक्टर दिख रहा है दिस विल बी हाउ मच, आई पी एक्स पी साइन बीटा होगा। सो दिस विल बी आई पी एक्स पी साइन बीटा। सो दिस इज योर टोटल कंपोनेंट वीपी, जो कि छोटे छोटे वेक्टर के कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। ऑल दोज हु आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हियर, एक प्रॉपर वीडियो मैंने शेयर किया है यूट्यूब पे भी, तुम उस पे भी जा करके एक उस वीडियो को भी दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, एंड उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो, ये क्लास का वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो बिकॉज यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे वेक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में, इसलिए थोड़ा सा इसको समझना डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कम ही आता है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने तुम लोग को करा दिया, क्योंकि फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम छोड़ दी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए मैंने ये वेक्टर, ये पूरा फेजर डायग्राम तुम लोग को कराया है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीटी जो है करंट ट्रांसफॉर्मर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ एंटायर इक्वेशन ऑफ वीपी इन टर्म्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे हमने सीटी में इस पूरे वेक्टर को वीएस से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी देखो एक एन टर्म आएगा और एक और टर्म आएगा जो कि विच विल हैव सम क्वांटिटीज, जिसमें कुछ आर एस आई पी का टर्म होगा। तो यहाँ पर भी तुमको एक, व्हेन यू विल डू वी पी डिवाइडेड बाई वी एस, तो यहाँ पर एक टर्म आएगा एन प्लस समथिंग। तो ये जो समथिंग होगा दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर रेशियो एरर, ठीक है। वी पी बाई वी एस शुड बी इक्वल टू एन, जैसे कि वहाँ पर हो रहा था इन केस ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। So Vp by Vs should be equal to n.
but because of these terms Vp by Vs will not be exactly equal to n, it will have some more terms in it, जिसकी वजह से हम इसका रेशियो एरर निकालते हैं। रेशियो एरर सेम जैसे कि हम इन केस ऑफ सी टी निकालते हैं रेशियो एरर, वैसे ही यहाँ पर भी के एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर करेंगे एंड वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू आर। ठीक है, सो नाउ देर इज अ डेरिवेशन रिलेटेड टू दिस। तो डेरिवेशन आज कराऊँ या कल के क्लास में कराएं, क्योंकि इट विल टेक अनदर 10 to 15 मिनट्स। तुम लोग एक बार इसको फेजर डायग्राम देख लो, फिर कल की क्लास में मैं तुम लोग को डेरिवेशन कराती हूँ इसका। ठीक है, यहाँ तक मैं फिर से नहीं कराऊंगी कल के क्लास में, तो यहाँ से फिर आगे हम लोग रेशियो एरर का डेरिवेशन करेंगे कल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए, और कल ही फिर हम लोग ट्रांसड्यूसर स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कल रेशियो एरर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट्स में हो जाएगा, 10-15 मिनट्स में। उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, लेट मी टेक योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन गो हैव योर लंच। ओके, सो गो थ्रू दिस फेजर डायग्राम, फिर हम लोग कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।